محترم و معزز بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو ایک محدود بنایا، یعنی ہر انسان اس دنیا میں اپنی زندگی میں ایک محدود زندگی گزارنے والا ہے، چاہے وہ کتنی ہی لمبی اس کی مدت ہو جائے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے نکل کر آخرت والی دائمی اس دنیا اور اس منزل کو پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تاکہ یہ انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، آخرت کے لیے اپنے ساز و سامان کو پیدا کر لے۔ اسی لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور انسان کو یہاں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی۔ محترم سامعین، ہماری زندگی اس دنیا میں ایک بہت محدود ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن متعین ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، کہنے والا بھی صحیح، سننے والے سارے لوگ اس دنیا سے نکلنا ہی ہے۔ یہ دنیا عمل کا دار و مدار اللہ نے بنایا۔ اس دنیا میں ہم جیسے گزاریں زندگی، آخرت میں ویسے ہی پائیں گے۔ جس طرح ایک بندہ اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر اس کی مطیع فرما برداری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارا، آخرت میں بھی اسی کو بہترین زندگی اور بہترین انجام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر بندہ اس دنیا میں اپنے من مانی زندگی، نفس چاہی زندگی، سماج کو دیکھ کر اپنی زندگی بنا لیا، آخرت کو بھول بیٹھا، تو جس طرح اس دنیا میں زندگی گزارا، آخرت میں ویسے ہی پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو یہ آگاہ کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے دن ہر نفس، ہر جان کل کے دن کے لیے کیا تیار کر کے کیا آگے بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ آپ کے سارے کام باخبر رکھنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم یہ بتائی کہ ہر نفس کل کے دن کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہر نفس کو کل کے دن آخرت کے لیے کیا ہے، بہترین عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے نیک عمل کرتے ہوئے، اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بننے کی حیثیت سے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آخرت ہے اسے غد کے نام سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ غدن کا معنی عربی زبان میں ٹمارو، یعنی کل آنے والے کل کے دن کو کہتے ہیں۔ آج جیسے ہمیں یقین ہے کہ آج ہم نے پا لیا اور کل، آج کے بعد کل جو ہے یہ ٹمارو جو ہے بہت قریب ہے، اسی طرح انسان یہ جان لے کہ آخرت بہت قریب ہے۔ اللہ نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِلْآخِرَةِ نہیں کہا، آخرت کے لیے کیا آگے بڑھایا دیکھا، یہ دیکھ لے کر نہیں کہا، بلکہ کل کے دن کے لیے تو نے کیا آگے بڑھائی، کیا تیاری کی، اس کا غور فکر کر لی۔ تو محترم سامعین، ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت ایسی ہی مثال جیسے آج ہم ہیں، کل کے دن بالکل کیا ہے، آنے والی ہے۔ آج ایک عرصہ ڈھل گیا، اس دن کا ایک عرصہ ڈھل گیا، باقی چند ہی لمحات یا چند ہی گھنٹے ہیں، اس کے بعد کیا ہے وہ سورج غروب ہو جائے گا پھر اور کل آ جائے گا۔ اسی طرح ہماری دنیاوی زندگی بھی یہ مختصر سے مختصر زندگی ہے، آخرت دائمی ہے، ہمیشگی ہے اور بہتر زندگی ہے، اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہماری اس دنیا کی حقیقت کو ہم جانیں محترم سامعین، اللہ اکبر۔ مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا ادنا سا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سمندر کے کنارے جاتا ہے اور سمندر میں ریت میں اپنے گھر بناتا ہے، وہاں پر قلعہ بناتا ہے، بہت محنت
घंटे घंटे लगा कर क्या है मेहनत कर कर बनाता है, और जब उसके अहलो आयाल या उनके माँ बाप या उसके फ्रेंड्स आकर उस घर को छूने चाहते हैं, उस मिट्टी की बनाई हुई घर को, वो बच्चा उस लोगों को रोकता है, नहीं छूना नहीं चाहिए, कहीं टूट ना जाए करके डरता है और किसी को आगे करीब नहीं करता। लेकिन अचानक साहिल से, अचानक समंदर से एक लहर आकर उस मिट्टी उस घर को खत्म करके चले जाती है, और वो बच्चा रोता है, बिलबिलाता है और इतना इसरार करता कि मुझे वो घर चाहिए। उनके वालिदैन, उस बच्चे के वालिदैन आके कहते हैं कि अरे बेटा ये तो खेल कूद है, ये तो हम आए हैं इस शोर को और समंदर के किनारे आए हैं बस इसीलिए कि खेल कर जाए, ये हमारी असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो क्या है, हमें जहां रहते हैं वो असली घर है। लेकिन वो बच्चा इसी में अड़ा हुआ है कि ये घर ही मुझे अहम चीज है, क्योंकि उतनी मेहनत करके बनाया, उतना वक्त लेकर बनाया, तो रोता है, बिलबिलाता है, लेकिन समझ नहीं पाता। माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि उन्हें उसके सारे सरमाए, सारी मेहनत उस पर गुजारी, इसीलिए वो रोता है, बिलबिलाता है, समझ नहीं पाता है। इसी तरह मोहतरम सामीन, हमारी हालत भी ऐसी ही है कि हम इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के मालो मता के लिए इतना जमाते हैं, इतना सरमाया जमाते हैं, कार हो, बंगला हो, सारे जितने भी हैं सारी चीज को जमाते हैं, इस नीयत से कि हम इसे आजमाएंगे और इस नीयत से कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अचानक मौत के लहर हमारी जिंदगी में आकर हमें उठाकर लेके चले जाती, और हम इस दुनिया ही असल जिंदगी करके बैठे हुए। जिस तरह वो बच्चा वो घर ही उसे लिए असल है समझा, इसी तरह हम भी आखिरत को भूल कर, हमारा जो घर है, हमारी जो मंजिल है, असल आखिरत जो मंजिल है, उसे भूल कर इस दुनिया के मंजिल में, इस दुनिया के मालूमता में डूबे हुए हैं। जिस तरह वो बच्चा नहीं समझता है, बात बताने के बावजूद भी ये खेल कूद है, इसी तरह हम भी नहीं समझते हैं कि अल्लाह कहता है कि ये खेल कूद है, ये तो दुनिया मालूमता क्या है, इन्नमा लाहिबु व लहव, ये तो खेल कूद की ये बस चीज है, और ये आज़ो आरास्ता करने वाली ये चीज है दुनिया। लेकिन इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, और गफलत इतनी गफलत अल्लाह अकबर कि वो सारे चीज को यही दुनिया समझ देता है। सोच के देखिए मोहतरम सामीन, इस दुनिया की हैसियत, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हैसियत मिसाल देते हुए फरमाया, इब्न माजा की हदीस में, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा लमा सका काफिरन शुरबत मा, अगर जान लो इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया और इसके आरस्ता, इसकी ज़ीब ज़ीनत की पूरी की हैसियत अगर एक मच्छर के एक पर के बराबर भी अल्लाह के सामने होता, अल्लाह के पास होता, तो इस दुनिया में, इस जमीन में, रूए जमीन में अल्लाह को इनकार करने वाला, अल्लाह को कुफर करने वाले को क्या है, एक बूंद पानी नहीं मिलती। देखिए सुभान अल्लाह, हम देख रहे हैं अल्लाह को इनकार करने वाला, अल्लाह को क्या है, अल्लाह ताला की क्या है, कुफर करने वाले की जिंदगी कैसी है। बस औकात हमें आजमाने के लिए अल्लाह ताला हुकूमत अता कर देता, असर रसूख अता कर देता, मालो दौलत अता कर देता, ताकि मोमिन को आजमाया जाए, यही हैसियत। इसी तरह जामे सगीर की और एक वाकया में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार को जा रहे हैं, अपने साथ सहाबा भी साथ में आ रहे हैं। उस बाजार में एक कचरे के कूड़े के पास एक बकरी मरी हुई पड़ी है, और वो बकरी भी कान कटी है, कान कटी हुई मरी हुई बकरी पड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के कान को खींचकर उठाकर कहा कि मैं यश्तरी मिन हादा बिदिरहम, कौन चाहता है कि मेरे पास से एक दिरहम के लिए इसे खरीदे। साहबा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ये जिंदा भी होती तो उसकी कीमत एक दिरहम की नहीं होती, क्योंकि वो माजूर, क्योंकि कान कटी हुई है, ऐबदार है, कौन खरीदेगा, अगर मरने के बाद तो उसकी कीमत ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हैसियत अल्लाह के पास इसी तरह या इससे भी बदतर है, इस मरी हुई बकरी से भी बदतर है, मरी हुई बकरी से भी क्या है, बहुत ही क्या है, हकीर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो देखिए मोहतरम सामीन, इस दुनिया के लिए कितना दौड़ धूप करते हैं। हमारे बच्चों को तालीम देते हैं, केजी सेक्शन से यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर तो नहीं निकलता। जो इन्वेस्ट करते हैं बच्चे के ऊपर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हैं, तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो क्या हो, सेकेंड स्टैंडर्ड में कमाने तो नहीं जाता,
بلکہ 20 سال ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں, اتنا اپنے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ کیا ہے 22 سال یا 25 سال میں کما کر دے گا. اتنا اس معاملے میں کلیئر ہیں ہم, اور پورا پلان ڈال کر میرے بچے کی کریئر کیا ہونا, وہ کیسے سیٹل ہوگا, ساری چیزوں کے ہم اتنا کلیئر پلان کر کے 25 سال کے بعد جو کما کر دے گا اس کے لیے ابھی سے ہم تیار کرتے ہیں. پتا نہیں وہ بچہ اس وقت تک پہنچے گا یا نہیں, یا وہ پہنچے گا تو بھی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا یا نہیں, اگر اسے وہ ڈگری بھی حاصل ہوگی تو اس کے مطابق اسے کام ملے گا یا نہیں. اتنا شک و شبہ, اتنا ڈر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے خاطر کیا دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. ہر آدمی سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ دین کے خاطر ہمارے بچوں کو یا ہم کتنا وقت گزار رہے ہیں. کہا جائے دین کو اہمیت دینا چاہیے, ہاں بھائی دین دیتے نا, آدھا گھنٹہ جاتے نا بچے ٹیوشن کو, مکتب کو جاتے ہیں, اور 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ سب دنیاوی. تو گویا کہ اللہ اکبر ہماری حالت ایسی ہے, آخرت پر تو ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہو پا رہی, کوئی محنت نہیں ہے. آخرت پر ایمان لاتے نا, لیکن اس کی محنت کچھ بھی نہیں, کچھ بھی فائدہ نہیں محنت. لیکن محترم سامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت, اس دنیا اللہ نے عطا کیا آخرت کو ہمیں پانے کے لیے, آخرت کو ہمیں پانے کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہے. یہ سارے مسخر کیے اسی لیے کہ آخرت میں ہمیں اس کی استعمال کرتے ہوئے آخرت پا سکے. لیکن افسوس ہے کہ اکثر انسان اس دنیا کو سارا اپنا ٹارگٹ سمجھ کر ساری چیز کو اس کی اہمیت دیتے, اتنا کرتا, اتنا محنت کرتا, سب کرتا, اچانک ملک الموت نکل جاتی اس کی روح, پھر ختم. پھر جتنا بھی جائیداد چھوڑ کر جائے ہمارے خانوادے یا ہمارے اہل و عیال ہمارے کپڑے تک نہیں چھوڑتے, کھینچ کے نکالتے, نہیں نکلا تو کٹ کر کے نکال کے ان کو یونیفارم دی جاتی ہے, کفن پہنا جاتا ہے, اور وہ جسم کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے, اس کے پاس کوئی چیز تک نہیں چھوڑتے, لے جا کر کیا ہے دفنا دیتے ہیں, بس اتنی ہی ختم. آخرت میں قبر کی زندگی میں کوئی چیز ہم نہیں لے جانا سوائے ہمارے اعمال کی. ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے خیر بنے گے. سبحان اللہ. دیکھیے ترکی اور جو سیریا کی حالت ہے, کون سوچا یا کون تصور کیا کہ ایسے حالت 1 ہفتے کے درمیان میں ہوگا. اللہ اکبر. ایسی خوشیاں تھی ان کے مابین, اچانک غم میں بدل گئے. ایسے عیش و آرام میں یا ایسے سہولتوں میں, ایسی خوشیوں کی زندگی میں گزار رہے تھے, اب دیکھیں اتنی تکلیف ہے, اور وہ لوگ اتنے امن و امان میں تھے, گویا کہ پوری سیکورٹی ان کے لیے تھا, لیکن اب خوف, ڈر, کہاں کوئی انتقال ہو گیا, کہاں کہیں انہیں اٹک گیا, کہیں انہیں صدمہ ہو گیا, اتنا ڈر میں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے اتنا ثروت تھا لیکن اللہ اکبر حالت, یہی انسان آن میں آن انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. سمجھدار انسان, عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے اپنے اس دنیا کو استعمال کر لیتا ہے. محترم سامعین, دور نہیں ہے, ہم بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں, یہی دنیا میں اسی روئے زمین میں وہ زلزلہ بھی حادثہ پیدا ہوا, ہم اسی زمین میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں, کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمیں نہ آئے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے سارے لوگوں کو. سوچئے محترم سامعین, ہمیں موقع اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا, ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے دکھاتا یا سناتا تاکہ اے بندہ کس طرف رخ جا رہا ہے, میرے طرف نکل کر آ, واپس لوٹ, تجھے موقع میں دے رہا ہوں. لیکن انسان اتنا دور چلے جاتا کہ وہ پھر واپس لوٹنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر. محترم سامعین, اللہ کے لیے ہمیں ڈرنا چاہیے, قیامت کے فکر اور قیامت کے تصور کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. محترم سامعین, ہماری زندگی میں اور ہمارے اس دنیا میں ہمارے لیے خیر ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے کیا بہترین اجر ملے, تو اس دنیا میں ہم کیا کیے, کیا آگے بڑھائیں. کوئی کیا ہے انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی بزنس میں پروفٹ لے سکتا ہے. ہماری حالت ایسی ہے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر ہی ہم پروفٹ کے انتظار کر رہے ہیں. کچھ دنیا میں عمل نہیں, بس دنیا میں عمل, سارے کے سارے دنیا کو حاصل کرنے کے دوڑ دھوپ میں. ہر آدمی, ہم میں سے سارے آدمی سوچنا چاہیے کہ میں میرے دین کے خاطر کیا میں کر رہا ہوں,
इस दीन के खातिर क्या कितना वक्त मैं दे रहा हूं, इस दीन जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसके लिए मैं क्या किया। मेरी पूरी दौड़ धूप सुबह से लेकर रात तक इस दुनिया के पीछे पड़ता हुआ है, लेकिन अफसोस है कि इंसान इसी में आखिरत को भूल बैठता है। मोहतरम सामईन, इसका गौर कीजिए। सलफ़ सालेह, अल्लाह अकबर, सलफ़ सालेहीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के जो सहाबा थे, उनकी जिंदगी में अल्लाह अकबर ऐसे थे कि दुनिया, वो लोग हुकूमत किए दुनिया पर। क्यों? उनका मकसद, उनका एम, उनका टारगेट सारी चीज के आखिरत रहने की वजह से दुनिया पर हुकूमत किए। लेकिन अफसोस है हम आखिरत भूल कर अब दुनिया हम पर हुकूमत कर रही है। दुनिया के हर कस और नाकस क्या है, हम पर क्या है, जुल्म कर रहा है, हम पर क्या है, हुकूमत कर रहे हैं। यही हमारे और सलफ़ सालेहीन की फर्क है। सलफ़ सालेहीन में सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के तदफीन में शिरकत हुए। शिरकत करते हुए तदफीन चल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, सारे लोगों को जमा कर कहा कि या इख्वानी लिमिस्लि हादा फाइद्दू, मेरे साथियों इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कहते हैं। ऐसे सहाबा जो जिनको जन्नत की बशारत दी गई, ऐसे सहाबा जिनको रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु टाइटल से नवाजा गया, ऐसे सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साथियों इस दिन के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। और अल्लाह के अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु, छोटे बच्चे अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तअलमूना मा अअलमू लदहिकतुम कलीलन व लबकीतुम कसीरा, अगर अल्लाह ने जो मुझे दिखाता है या मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया या मुझे बताता है, अगर आप वो देख लो या आप वो जान लो, तुम्हें हंसी, आप हंसने के कम कर दोगे, आप हंसी भूल जाओगे और रोने पड़ जाओगे, रोने लग जाओगे। ये सुनना था कि सहाबा, अल्लाह अकबर, अनस इब्न मालिक जो छोटे सहाबी थे वो कहते हैं मैंने देखा कि सारे सहाबा अपने सर को झुकाए हुए अपने सरों में क्या है कपड़े डालते हुए सिसकियां लेते हुए रो रहे हैं। तो कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसी थी सलफ़ सालेहीन। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से कैस इब्न अबी हाजिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा अपने बीवी के जानों में लेट कर रो रहे हैं, लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, सिसकियां लेकर रो रहे हैं। ये सुनकर और ये देखकर उनकी बीवी भी क्या है, रोने लगी। तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि मा युबकीक, किस चीज ने तूने रुलाया? तो वो सहाबिया कहती हैं आपको मैंने देखा, आप रोते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं, तो मुझे भी रोने आ गया। तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला की उस आयत को याद किया, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व कान अला रब्बिक हतमन मक़दिया, हर आदमी उस पुल सिरात के रास्ते पर, उस पुल सिरात पर चलना ही पड़ेगा, हर आदमी उस पुल सिरात से गुजरना ही है। ये अल्लाह ताला का अटल फैसला है। पता नहीं अंजू मिन हादा अमला, मुझे पता नहीं कि मैं उसमें बच पाऊंगा या बचकर निकल जाऊंगा, या मैं उसी में उस पुल सिरात से, उस सिरात से जहन्नम में गिर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अब्दुल्लाह बिन रवाहा जो सहाबी इतना डरते थे आखिरत के ताल्लुक से, हमारी क्या है हैसियत। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामीन, अल्लाह ने हमारे सिफत में से एक सिफत ये भी बयान की कि हम गैब पर ईमान लाने वाले हैं। आखिरत हमने नहीं देखे, जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा, अल्लाह ताला पर अल्लाह ने कहा कि ईमान लाओ, तो हम ईमान लाने वाले। अगर देखने के बाद तो सुभान अल्लाह, आग देखने के बाद जानवर भी डरता, आंखों से देखने के बाद हर आदमी डरता, बगैर देखे ईमान लाना ही हमारे लिए क्या है, इम्तिहान है। मोहतरम सामीन, देख लेता तो उस वक्त क्या है, कोई टेस्ट नहीं होती, इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया। इम्तिहान ड्यूरेशन दिया जाता है, उस वक्त में इम्तिहान लिखेंगे तो इम्तिहान में क्या है, आपको नंबर दिया जाएगा, वरना खत्म। तो इसी तरह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान करीम में उन लोगों के ताल्लुक से कहता है जो लोग इस दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजार रहे थे, उनको कहा जाता था कि आखिरत के लिए तैयार करो, लेकिन नहीं हो सके। वो बिल्कुल क्या गफलत की जिंदगी में अपने नफ्स की ख्वाहिशात में पड़े हुए, अपने सारे आज़ो और अरमान को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इस दुनिया में लगे हुए थे, अपना तगद्दुक लगा रहे थे।
वो लोग आखिरत में कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, ऐ हमारे परवरदिगार हम आप देख लिए, अब हमने देख लिया और अब सुन लिए, जो कुछ जहन्नम और जन्नत के ताल्लुक से बताएगी अब हम हमारे आंखों से देख ली और हमारे कानों से सुन लिए, फरजिअना हमें दुनिया में भेज, नअमल सालिहन हम लोग अच्छे अमल करके आते, इन्ना मूकिनून अब हम ईमान लाते, एकदम परफेक्ट हमने आप यकीन कर लिए, अब कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, अल्लाह ताला ने ये जो भी जलाजिल है जलजले के शक्ल में या दूसरे हादिसात के शक्ल में, ये सब के अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए, अपने बंदे को आगाह करने के लिए, कहां जा रहा है मेरी तरफ लौट आने के लिए अल्लाह ताला आगाह कर रहा है। अक्लमंद इंसान, स्मार्ट और जीनियस इंसान वो है जो इंटीमेशन देने की हैसियत से वो क्या है अपने आप को क्या है सीधा कर ले, अपने आप को क्या है खैर क्या है काम में इस्तेमाल कर ले, वरना आज मैं हूं पता नहीं रहूंगा या नहीं, कल आप आज हैं कल रहेंगे नहीं, हम आज किसी की लाश लेकर जा रहे हैं कल हमें भी उठाकर लादा जाएगा, आज हम किसी को गुस्ल दे रहे हैं कल हमें भी गुस्ल दिए जाएंगे, आज हम किसी के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं कल या आज भी हो सकता है कि हमारे जनाजे में शिरकत करेंगे लोग। तो इसलिए मोहतरम सामीन, हमारे वक्त आने से पहले हम अपने आप को सुधारने चाहिए। आखिरत की जिंदगी, हमारा घर असल घर आखिरत है, जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो छोड़े हैं वो घर हमारा है, अल्लाह ने उसी लिए हमें ये किया, उसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसके लिए हमें आखिरत को क्या है अपने 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 मकसद हयात रखना चाहिए। इस दुनियावी मता के क्या है इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल क्या ममानियत नहीं है, इस्तेमाल करे लेकिन इसे अपने हाथ में रखे, दिल में उसकी मोहब्बत ना रखे। इस दुनिया को आखिरत के लिए इस्तेमाल किए, वो इंसान बदबख्त है जो आखिरत के लिए इस दुनिया के लिए आखिरत को खो देता है, वो बदबख्त है इंसान जो आखिरत जो दायमी है उसको छोड़कर इस दुनिया को तरजीह देता है। मोहतरम साहब, लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो कुछ वाक़या या जो कुछ हादिसा हो रहे हैं इस सब के क्या है क़यामत की अलामतें हैं। आने वाले ज़िंदगी, आने वाले ज़माने बहुत कठिन होंगे, अच्छे अमल करने की तड़प भी होगी लेकिन कर नहीं पाएंगे, हालात हमें मौका नहीं देगा। उसका मिसाल तो हम क्या है कोरोना में हम देख लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वाले सारे को अल्लाह ताला इस फिक्र आखिरत में गौर फिक्र करने और अपने मकसद हयात को समझकर इस दुनिया को आखिरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और आखिरत हर दम हर वक्त अल्लाह ताला हमें आखिरत के याद रखते हुए इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मौत के ताल्लुक से, हशर के मैदान के ताल्लुक से याद करते हुए इस दुनिया में अल्लाह के मुती व फरमाबरदार बंदे बनकर गुजारने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी इस हादिसे में इंतकाल कर गए हैं अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत नसीब फरमाए, और जो भी यहाँ इसमें ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।